माइंड बॉडी एंड सोल में आज हम डिस्कस करेंगे विद अ गेस्ट ऑन सेट राबिया अजीज़ हु हैपन्स टू कम यू नो शी इज़ कम बिफोर एज वेल और हर दफ़ा आती हैं हमसे एक नए टॉपिक पे बात करती हैं बिकॉज शी हैज़ सच अ वास्ट नॉलेज टू शेयर विद अस एंड टुडे वील बी स्पेसिफिकली डिस्कसिंग यू नो बुलिंग एंड एंग्जाइटी एंड एग्जाम स्ट्रेस विद हर शी इज़ अ क्लिनिकल ट्रॉमा स्पेशलिस्ट अ साइकोथेरेपिस्ट एंड इज रेजिलियंस कोच वेलकम टू द शो हाउ आर यू डूइंग हमेशा इत्तेफाक इसी तरह होता है राबिया कि हम मंडे का शो ही शुरू कर रहे होते हैं इसी तरह एंड आज ईस्टर की छुट्टी थी and I remember last time भी छुट्टी थी and you came I remember well चलो okay this is also you know much needed as well so Rabia we'll be discussing something जो कि I think as mum you're suffering through it probably as well I am too exam stress and you know a lot of anxiety that is happening in a lot of kids as well and how do you handle it हम लोग जब छोटे होते थे उसको तो you know फिर भी manageable होता था but when we see our own kids having little tiny heartbreaks multiple times a day because of their exams how do you help them you know रिचा इसके अंदर आपने एक वर्ड यूज़ करा है सफरिंग yeah and यहीं से डिफ्रेंसिएशन बताना कि there's suffering and then there's challenges suffering is जब आप actual signs and red flags देखो and as a parent as a teacher or as a friend and आप उनको address करो. Challenges are those short hurdles which we all experience and we have different ways of dealing with them, right? So there's a bit of a difference in the kind of awareness to be raised over here. So what is a short way we can tell कि राबिया ये एक challenge है और ये actually एक रेड फ्लैग की तरफ जा रही है चीज़ अगर हम इस वक्त सोचें रिजा यू नो इट्स एग्ज़ाम टाइम ओ लेवल टाइम इंटर टाइम ये वाला जहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं और आपकी पूरी लाइफ पे डिसीजन डिसाइड हो रहा होता है कौन से ऐसे साइंस हैं जो बच्चा दिखा रहा है राइट आर दे एंग्शियस आर दे विड्रॉन आर दे कम खा रहे हैं ज़्यादा खा रहे हैं कम सो रहे हैं ज़्यादा सो रहे हैं एनीथिंग इन एक्सेस कोई भी चीज़ जो एक्सेस में हो रही है is not just a challenge, it is something that needs to be addressed, right? Absolutely. It could be very very challenging for the child, but वो challenging से ज़्यादा गुजर चुका है. And then there's a child who will come up, मेरे पेट में दर्द हो रहा है. And those are somatic, you know, changes, physiological changes, which we all experience. I mean, I don't know if you still experience when you're going to make a speech. Sometimes, yeah, of course. Right? You get nervous. Butterfly short breathing हो रही होती है. Yeah. And those are challenges which we, you know, breathe our way through. Yeah, we talk ourselves or हमारे पास support अगर हो तो we can walk through it. Okay, so one of the challenges that I feel as a mum and I'll be very upfront about it is that I can't somehow tell that is he actually having a stomach ache because he's stressed about his math test tomorrow or is he making you know exaggerating a little more because he is young right? He is 9 after all. So how can you tell that? Now, देखें this is also age dependent, right? अब अगर एक छोटा बच्चा है, so let's look at ages between 5 and 12. ठीक है. और 5 and 11. And अगर ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, most of the time, you know, parents will say, अच्छा ये कर लो, और सही हो जाएगा. But listen to these somatic behaviors, listen to these physiological changes. क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होगी. And that is the first step to building support and connection अपने बच्चे के साथ, right? अगर 12 and above हैं, they'll be very upfront about it and they'll say आजकल के ज़माने में वे मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा स्कूल बिकॉज मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा बट मुझे जाना ही नहीं या मुझे करना ही नहीं. Oh wow, do they do that? Do kids do that after? A lot of children do really? That, right? Yeah. Wow, that's so cool. I don't know how I'll handle that. Have your kids done that? That mom, I'm just not going to do. Yes. Yeah. And what do? Talk to them. Does it work? Talk to them. It is a challenge. Lekin, you know. But Rabia, what do you feel about letting your kids have that one mental health day if they need? Why not? है ना? Why not? It's okay, right? I remember कि हमें ऐसे कोई ब्रेक नहीं मिलते थे. लेकिन अब चूंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नानाज और दादीज बन गए हैं तो वो कहते हैं ओह तुम उसकी वेलबींग खराब कर रही हो. Letter. I get it. अच्छा, so what are some of the common misconceptions that people have कि यार anxiety इससे और खराब हो जाएगी या मेरा stress और खराब हो जाएगा? So if we were to take it student, you know, students के लिहाज से, one of the biggest misconceptions students have is कि
मैं ही हूँ जो इससे गुजर रही है. Yes, oh my God, I'm the only one. Yes. Right? और उनको समझाना कि no, this is pretty much across board. सबको ये feel हो रहा है. So comparison is the worst form of cruelty, right? And comparison sets in. One of a great misconception is कि अगर मैं ये fail हो गया, ये तो मैं पूरी जिंदगी फेल हो जाएगी. But that misconception also comes from parental anxiety. That end all be all thinking कि ये वाले एग्जाम में फेल हो गए तो बस जिंदगी में फेल हो जाएं. Like I to get to hear this, like एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, I'm stupid, I don't know this. And that इतना sweeping statement for something so small. I was like, it's okay. It's not that big a deal, you know, it's just one test. I think we have a caller as well. Hello, अस्सलाम वालेकुम. मॉर्निंग ब्यूटीफुल गर्ल. गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. राबिया को बहुत सलाम हूँ. हमेशा उनसे जब ये आती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं. और वैसे भी मेरा स्ट्रेस तो रिच आपको देख के वैसे ही आपकी देख के काफी हद तक कम हो जाता है. थैंक यू याया, थैंक यू सो मच. अच्छा, मेरा सवाल राबिया ये है, देखिए बात ये कि हम भी एग्जाम देते थे, हम भी पढ़ते थे, लेकिन हमारे बच्चों, हमने और हमारे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया. लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस वालिदैन ले लेते हैं, क्योंकि वो नंबर्स की दौड़ में इतने लग गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं वो क्या बनाना चाहते हैं. आई वांट टू, देखिए मैं ये जानना चाहता हूँ, आप अपने पेरेंट्स को क्या गाइड करेंगी कि वो जो और स्ट्रेस बच्चों पे वो डाल रहे होते हैं नंबर्स लेने के लिए, और छोटे छोटे बच्चों पे, और वो उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम कितने जिम्मेदार हैं बच्चों पे स्ट्रेस डालने के, एंड हाउ कैन वी गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग? That's my question. Thank you. Thank you, Yaya. Brilliant question. क्योंकि माँ बाप की जो एंजाइटी होती है वही बच्चे मिरर कर रहे होते हैं, वो एक आईने में देख रहे होते हैं, और वो पेरेंटल चेंजेस देखते हैं, पेरेंटल मूड देखते हैं, पेरेंटल बिहेवियर देखते हैं, एंड वही वो. सो अगर पेरेंट बच्चे को देख रहा है और कह रहा है कि भाई तुम अगर इसमें फेल हो जाओगे तो बस that's end, your life will end, इसके बाद क्या होगा, तो बच्चे में वही सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की और सेल्फ वर्थ की लोनेस सेट इन हो जाएगी. राइट, एज याया सेड कि यू नो पुराने ज़माने में ये हो रहा था और आज के दौर में ये हो रहा है, बट पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो नहीं थीं, लाइक सोशल मीडिया, एक्सेसिबिलिटी टू एवरीथिंग, यू नो, बच्चे बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बहुत सिंपल एक ज़िंदगी थी. एंड अब फास्ट उसमें अगेन सब कोई मैचअप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी ये करना चाहिए, वो ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, तो एक हम जिंदगी एक रैट रेस ऑफ कंपैरिजन में गुजार रहे हैं. सो सेट योर ओन गोल्स. आप वो करें जो आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छा हो, और आप जो आप प्रोवाइड कर सके, नॉट वो जो बाकी सब प्रोवाइड कर रहे हैं और या जो बाकी सब अचीव कर रहे हैं, बिकॉज दैट it's not possible. And try not to compare your kids. I think that's very important as well. बिल्कुल. And examinations are not a test of intelligence. बहुत सारे लोग हैं, you know, I have people अपनी पर्सनल जिंदगी के साथ अटैच, जिन्होंने स्कूल में उन्हें पूरा बचपन फेल करा, और इस वक्त वो अपनी मेहनत से, अपनी इंटेलिजेंस से या स्ट्रीट स्मार्टनेस से CEOs हैं. And you know, Rabia, I would love to add on to that as well. कि you know, when I was younger as well, my parents would really force me a lot to study as well. And मैं पहले वाले segment में भी यही बात करी थी. Not force me, they wanted me to do well, like really well. And when I didn't, I realized I was always a creative. You know, I was always interested in subjects like astrology. मतलब मैं 3D में तो कभी थी भी नहीं as such इतनी. And my kid is like that. I don't force him to get like A's and you know, आपके बच्चे का एक अपना एक skill और talent भी होगा. Notice that and work on that. अब तो ज़माना भी इतना change हो गया. You don't have to drill them कि आप exams ही पढ़ें. अच्छा, so as a psychotherapist, what are some of the evidence-based techniques that you have कि जिससे हम overwhelming anxiety से deal कर सकते हैं? So again a very great question, more clinical, लेकिन इसके अंदर ये है कि for example, if somebody is showing somatic physiological, मतलब कि when I say somatic, पेट में constantly दर्द हो रहा है, आंखें फड़फड़ा रही हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये सारे bodily you know sights and feelings and reactions होते हैं, changes होते हैं, right? अगर आप
2 मिनट के लिए सिर्फ, एंड हम अपने आप को सिखाएं और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने वालिदैन को सिखाएं कि बॉक्स ब्रीदिंग करें। बॉक्स ब्रीदिंग, तो बॉक्स ब्रीदिंग इज 4 सेकंड इनहेल करें, 4 सेकंड होल्ड करें, 4 सेकंड एक्सहेल करें। एंड आप ब्रीदिंग को अपने तौर पे डेवलप कर सकते हैं। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर नोज। मतलब आप डिफरेंट चीज़ें, और हर चीज़ इस वक्त अवेलेबल है ऑन कामिंग एप्स एंड एवरीथिंग। सो ब्रीथ करें। सेकेंडली, cognitive reframing. Now cognitive reframing is from obviously from CBT, from cognitive behavioral therapy, and उसके अंदर reframe how you are thinking of yourself, right? So अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कमतर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, okay, हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं? What can you do for yourself जिसके अंदर ये आप अपने आप बिलीफ सिस्टम कर सकते हैं कि no, I am doing my best, I am not going to fail, and मैं पढ़ चुका हूँ, you know, so या मैं ये काम कर चुकी हूँ, तो जो भी इसका बेस्ट नतीजा होगा। And Rabia, sometimes I think even looking at your past successes helps a lot as well. कि यार मैंने वो भी तो कर ही लिया था, मैं ये भी कर लूँगी। But as humans रिचा, हम हमेशा नेगेटिव या फेलियर की तरफ जाते हैं। So हमारे लिए effort is equal to what we are going to achieve, but a lot of times lack of effort is also equal to failure. Yeah, right, that's true. So we need to kind of be able to assess what is happening, and especially even in you know clinical based evidences, support and listening takes you a long way. Communication तो हर चीज़ में I think is one of the most essential things.